Oxygen and carbon dioxide transport in blood. You people already know some basic concept about it. I think everyone knows here. Oxygen travels in the blood via binding to hemoglobin. CO2 travels in the blood via in the form of bicarbonate ion. So this is the old thing. I'm not focusing on these things right now. मैंने कुछ पार्शियल प्रेशर डिस्कस करने हैं आज कि वो पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस क्या होते हैं जिसकी बेस पे एयर से लेके आपके सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। मैंने क्या बोला है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर टिल द लेवल ऑफ योर सेल टिश्यूज। पेनक्रियाज को ऑक्सीजन पहुंचनी है, किडनीज को ऑक्सीजन पहुंचनी है, और एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी जिसको ऑक्सीजन पहुंचनी है, जो कि लंग्स के रूट से होके जानी है, लेकिन उसमें पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस और आपके एमसीक्यूज। अब मैं आपको बहुत ब्रीफ और सिंपल सी एक ना स्कीमेटिक डायग्राम से आपको एक बात समझाता हूं, जरा बोर्ड पे फोकस करना थोड़ी देर। ये ले लो कि ये वो पार्ट है जो कि डेड स्पेस का पार्ट, योर एनाटॉमिकल डेड स्पेस, और ये जो पार्ट है ये एयर सैक का पार्ट है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आपको पता है एयर सैक में 3 चीजें आती हैं, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दी डेड स्पेस पार्ट। मैं सिर्फ अभी आपको इसलिए मैंने स्कीमेटिक का वर्ड बोला, स्कीमेटिक होता है समझाने के लिए। एटमॉस्फेयर, what is the normal atmospheric pressure overall? 760 millimeter mercury, we know, it's a very old knowledge with us. If I want to calculate the PO2, partial pressure of oxygen, out of this 760, how will I calculate? It is 20% of this. 20% होती है ईयर में एवरेज, 21 भी है, 19 भी है, हम आसान कर लेते हैं ना, अपनी हमें मैथ्स इतनी अच्छी नहीं आती। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, इट कम्स आउट टू बी 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। राउंड ऑफ अगेन, इट्स रेंज 150 to 165, राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो PO2 in atmosphere is 160 millimeter mercury. I've just told you how I calculated. Okay. This partial pressure, अब मैं सिर्फ PO2 पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि this is the important gas which we are inhaling. Nitrogen is not important. CO2 or any other gas is not important for us. This 20% is the most important part of atmosphere we are having right now. 160 millimeter of mercury. When this PO2 of 160 reaches the air sac, listen very carefully, this partial pressure becomes 104 millimeter of mercury. So what happened here? The partial pressure of PO2 has reduced from 160 to 104. And what has caused this massive reduction in partial pressure? Wetness of the track. There is a law in physics which tells us that if the humidity is added to a gas, its partial pressure decreases. So our whole respiratory tract is humid. We already know that. It is full of mucus. The lining of the tract is full of mucus. And whenever that gas mixes with that mucus, the partial pressure of oxygen decreases till it reaches the air sac, and at the level of air sac, it becomes 104 millimeter mercury. The first reduction in partial pressure of oxygen, it occurs in the area where there is a dead space. So can it be included in the advantages of dead space? It is a very big advantage. मैं भी आपको बताता हूँ किस तरह से, अभी मैं बताता हूँ। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में एट अ नॉर्मल रेस्टिंग लेवल पे बात कर रहा हूँ, ये मैं अभी चेंज भी करूंगा इसकी कंडीशन एमसीक्यू के लिए। What happens next? What comes next is your pulmonary capillary. Then there is arterial end and a venous end. ऑक्सीजनेट हो रहा है। ये जो पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड आ रहा होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ से आ रहा है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये जो ब्लड आ रहा होता है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ये जो सेल की तरफ से आ रहा है ना डीऑक्सीजनेट होके, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40 millimeter of mercury. And what is the rule of diffusion of gases? From high partial pressure area to the low area. And which mechanism it will follow of transport? Simple diffusion. How do you define simple diffusion? From high concentration to low concentration. And simple अगर लगा रहे हैं तो मतलब क्या है? A lipid soluble substance. एक condition add हो गई है यहाँ पे. What is the difference between diffusion and simple diffusion? In diffusion, there may be anything which is from high to low. In simple diffusion, the thing is lipid soluble. Again high to low. ये फर्क आ गया इसमें. तो ये all gases are lipid soluble, आपको बताया था, बहुत पहले की बात है। और यहाँ पे ये आ जाएंगे
कब तक आती रहेगी? जब तक यहां पे PO2 रीचेस 104. I have a question here. What is the partial pressure difference of PO2 before exchange? 64. Absolutely. It is 104 minus 40. कितना है? 64. Now there is a clinical clue here. गौर से लाइन सुननी है. More is the difference of partial pressure at the level of air sac. More is the difference of the partial pressure of oxygen at the level of air sac. More quickly and in more amount the oxygen will enter in the blood. It's very simple. What if it is 164? ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, ज्यादा देर तक आती रहेगी. What if it's 264? What if it is 564? Just imagine what will happen. You know, whenever a person comes to the medical emergency with a gaseous poisoning, inhaling of some toxic gas, and he or she is unconscious, it happens many a times in emergency. There is some cylinder bursting, or the people working in the mine, some unknown toxic gas just appears and they become unconscious because they inhale it. They can't control it. They have to inhale it. Our nose has no ability to differentiate between the gases. So inhale कर लिया, अंदर चली गई. अब अंदर जाके तो उसको करते क्या? जब हॉस्पिटल में आता, हमें नहीं पता, हमें गैस का ही नहीं पता ना. हम तो वहां काम नहीं कर रहे थे डॉक्टर होके, लेकिन हमारे पास आए तो हमें तो नहीं पता हम गैस कहां से डायग्नोज करें. लेकिन जो सबसे पहला काम हम कर सकते हैं, व्हाट वी डू इज वी पुट ऑक्सीजन मास्क connected to the cylinder, and that cylinder does not contain 20%, it contains 100% oxygen. 100% समझ रहे हो? मतलब हम उसको 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वाली ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो रिड्यूस होके यहां पे भी इट विल बी ह्यूज. 400-500 तो होगा यहां पे भी. आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन इतना तो बनेगा. और सोचो कितना, तो कर क्या रहे हैं हम पेशेंट में? वी आर इंक्रीजिंग दिस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस एट द लेवल ऑफ एयर सैक so that the diffusion of oxygen increases. Diffusion of oxygen increase. Okay. PO2 यहां पे आ गया. Pulmonary vein reaches where? Left heart, left side of heart, left atrium, left ventricle. एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं. जब ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर होने लगता है दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको लेफ्ट एट्रियम के एंट्रेंस पे खड़ा कर, डायनासोर के लेफ्ट एट्रियम के एंट्रेंस पे हम खड़े हुए हैं और वहां पे वो मीटर पकड़ा हुआ है, कैलकुलेट कर रहे हैं ऑक्सीजन आ रही है, जा रही है. मीटर एकदम मीटर पे रीडिंग आई है कि मीटर पे रीडिंग हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितनी होनी चाहिए थी? 104, बट द रीडिंग इज 95 मिलीमीटर. At the level of entry of oxygenated blood in the left atrium, what is the partial pressure of oxygen? 95. So what's the question coming to mind? What has reduced this 104 to 95? It should be 104 here. Here is some anatomical reason. In pulmonary vein, two veins are emptying here. ड्रेन हो रही हैं यहां पे, उनका नाम है ब्रोंकियल वेन्स. दिस इज अ वेरी रेयरिटी इन आवर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी. बाय द वे, मेरी तरफ देखो, एवरी वेन फाइनली ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा. अगर ऊपर की बात, फाइनली का वर्ड लगाया, ऑफ कोर्स हर किसी का डिफरेंट. फाइनली ड्रेन्स इनटू. सो ब्रोंकियल वेन शुड आल्सो ड्रेन इनटू inferior vena cava, but instead it is draining not into inferior vena cava, it is draining into another vein which is called pulmonary vein. अब अगर देखो, pulmonary vein में oxygenated, pure oxygenated blood, highly oxygenated, चाहे इतना oxygenated तो पूरी बॉडी में कहीं नहीं होगा जितना अच्छा pulmonary vein में. अभी बिल्कुल फ्रेश आया ऑक्सीजनेट होकर, लेकिन वहां पे bronchial vein से कौन सा ब्लड आ रहा है? Deoxygenated. So when a deoxygenated blood is mixing into the oxygenated, so what will happen? The partial pressure of oxygen should fall. तो कितना नीचे आ जाता है? 95. अब यहां से रिड्यूस नहीं होने वाला. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इट इज 95, एओर्टा में 95 रीचेस द टिश्यू. अब टिश्यू बना लेते हैं, चले. यहां पे एक टिश्यू सेल है, यहां पे ये ब्लड कैपिलरी पहुंच रही है. अब यहां पे जब आ रही है तो कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है? 95. तो कहां जानी है यहां से? सेल के अंदर. अगेन व्हाट्स द रूल? Partial pressure difference should be there, otherwise it will not move. ऑक्सीजन को कोई कहता थोड़ी है वहां गार्ड खड़ा होकर किधर आ जाओ, यहाँ जगह, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. ऐसा भी थोड़ी है. तो उसको क्या पता कहां जाना है? मैंने उसको रास्ते में जहां भी पार्शियल प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, इट विल जस्ट क्रॉस इट. व्हाटएवर द मेम्ब्रेन में बैरियर है ही कोई नहीं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल, वो इसको इशू है ही नहीं.
So what is the partial pressure of oxygen in the cell when the oxygen wants to enter? It is 40 millimeter of mercury. Again, कितना है 40 मिलीमीटर में. So what will happen? Partial pressure difference create हो गया 45 का. 45 भी बनता है ना 95 55 सॉरी 55 का डिफरेंस क्रिएट हो गया. कब तक ऑक्सीजन अंदर आएगी? जब तक अंदर कितना हो जाएगा 95. तो यहां कितना रह जाएगा? जितना अंदर था 40. आई हैव अ क्वेश्चन एमसीक्यू पूछूं. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन वेन्स इज 40 millimeter mercury. The partial pressure of oxygen in aorta is 95 millimeter. The partial pressure of oxygen in pulmonary vein is 104 millimeter mercury. This is as it is. ये सिंपल सीधे सीधे एमसीक्यूज. और एओर्टा की बजाय आपको डॉज करने के लिए कोई आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, इलियक आर्टरी, फेमुलर आर्टरी, जो मर्जी लिख दो, इट विल बी 95 till it reaches the level of the tissue. ये वाइवा क्वेश्चन है. व्हाट रिड्यूसेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम 104 टू 95? दिस इज वाइवा क्वेश्चन. ये तो सबको पता है कि 160 से 104 क्यों हुआ ह्यूमिडिटी, लेकिन 104 से 95 क्यों हुआ ये वाइवे में भूल नहीं जाना. बस नहीं भूलोगे आप लोग, मुझे पता है, इंशाल्लाह याद रखना. ओके, अगली इंपॉर्टेंट बात. अब ये आप लोगों ने थोड़ा बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज यूज करके मुझे यहां पे बताना है. जब ये 95 वाला ब्लड पहुंचा सेल के ऊपर, तो सेल में PO2 40 क्यों था? हाँ, वो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट हो चुकी है. उसने एटीपी बना ली है. ऑक्सीजन जो प्रीवियस फ्लो के साथ आई थी वो यूज कर ली, और यूज करने के बाद कितनी रहेगी सारी? सिर्फ 40 मिलीमीटर. वेरी लेस. अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जितना ब्लड में ट्रेवल कर रहा होता है, अब इसका कॉन्सेप्ट हमने समझना. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वो तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, लेकिन यहां पे कुछ टर्म्स हैं, उसका जरा ख्याल करना है. When oxygen is entering in the blood, the first entry in the blood is pulmonary vein, pulmonary capillary, then pulmonary vein. When it enters in the blood, what is the first thing oxygen will interact with in the blood? Even before entering into RBC, there will be plasma. ब्लड में हमें पता है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. तो प्लाज्मा और आगे क्या पड़ा हुआ है? आरबीसी. अभी गौर से बात समझो. 3%, मतलब मैं कह रहा हूं 100% ऑक्सीजन एंटर हो रही. 104 को हम 100%, वो तो पार्शियल प्रेशर था ना, मैं उसको 100% में ले लेता हूं. 100% ऑक्सीजन इज एंटरिंग इनटू द ब्लड. 3% इमीडिएटली इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. जितनी ऑक्सीजन आपके पल्मोनरी कैपिलरी को मिलती है, उसका कितना परसेंट इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में? ओनली 3%. द रेस्ट ऑफ द 97% enters in the RBC and binds to the hemoglobin. पहली बात क्लियर? सॉरी, 3% dissolved in plasma and remaining 97% binds to hemoglobin. अब गौर से बात सुननी है. ये जो अभी मैंने PO2s बोले ब्लड के अंदर, गौर से जो PO2s बोले, first it was 104 millimeter mercury, then it became 95, then it became 40 after that. This PO2 is of that dissolved in plasma or of 97%. Listen very carefully. This PO2 can only be calculated of that 3% dissolved in plasma only. ये जो आप बोल रहे हो ना 10495, ये 97% वाली ऑक्सीजन का PO2 नहीं है. ये कौन सी वाली? वो प्लाज्मा की जो ओनली 3% है. वाई? आपको सर 97 तो पड़ी हुई है, ये हम क्या कर रहे हैं? We can't measure that in the RBC. It will be easier for us to measure in the plasma. जो हमारी देखो measure किया गया तो पता लगा है ना, ये कोई hypothetical values तो नहीं है, या खुद से किसी को ख्वाब तो नहीं आ गया कि हाँ 104 हुआ करेगा, ऐसा तो नहीं है ना. तो कोई measure हुआ है ना. measure करना कहाँ आसान होता है? हमेशा प्लाज्मा की चीजें measure करना आसान है, किसी सेल के अंदर measurements करना बहुत मुश्किल काम है. ऐसा नहीं मैं कह रहा कि measure नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स सेल के अंदर measurement हमारे पास है. डोंट वी नो द concentration of sodium inside cell? Don't we know the concentration of potassium inside cell of different proteins, ions and whatever? We know it. But for this thing, देखो ये तो एक अलाइव में होगा ना काम. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी जिंदा इंसान में ये काम कैलकुलेट होगा.
वरना तो उसमें तो ना ऑक्सीजन ही नहीं आ रही होगी किसी डेड में, तो क्या कैलकुलेट करना। तो इसलिए इट्स अ चैलेंजिंग फॉर इट। सो ऑलवेज रिमेंबर वट एवर partial pressure you are talking about in the blood of any gas, it will be that of dissolved in plasma. Either it is 3%, 30%, even whatever the percentage, does not matter. हमें 3% से ही पता लग जाता है कि कितनी ऑक्सीजन अंदर गई। जस्ट 1 मिनट, मुझे कंप्लीट करने दो। यहां तक बात समझ आ गई? ये कि सिर्फ 3% का PO2 हम बताते हैं, सारा इतनी PO2 की मेजरमेंट है प्लाज्मा में डिसॉल्व होने वाली। अभी जो 97% अंदर गई है, इसको हम ये कहते हैं, you already know that, I hope. One hemoglobin can bind how much oxygen? 4 oxygen molecules. Just consider hemoglobin as a bus, is a transporter. The seats of the bus are made up of iron. Each hemoglobin contains 4 seats of iron, and on each seat of iron a passenger of oxygen molecule sits. Okay, so one hemoglobin binds to or can accommodate 4 oxygen maximum. Now here is a viva and a written question. There is a phenomenon here when the oxygen binds to hemoglobin at the level of lungs. It is called positive cooperativity. पॉज, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं, किसी ने पूछना था, मैं बाद में लेता हूं क्योंकि मैं बताता हूं, अभी मैं इसको बताता हूं, समझाता हूं। कैन समवन टेल मी द टाइम प्लीज? आई डोंट हैव द क्लॉक हियर। 8:30, ओके। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि व्हेन ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन. This oxyhemoglobin, the combination of this formation of oxyhemoglobin occurs via phenomenon which is called positive cooperativity. Positive cooperativity is a kind of a positive feedback cycle. मेरी बात सुनो गौर से, मेरी बात सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूं। हीमोग्लोबिन हमारे बाकी प्रोटीन है, नहीं तो पता नहीं हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारे बाकी प्रोटीन से बहुत डिफरेंट है, दो वजहों से। हीमोग्लोबिन में 2 डिफरेंट बातें हैं। एक तो हीमोग्लोबिन की डिफरेंट बात यह है कि इट इज अ पिगमेंटेड मॉलिक्यूल। व्हेन आई से अ मॉलिक्यूल, अ पिगमेंटेड मॉलिक्यूल, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कलर है। हम किसी प्रोटीन से कलर की बात नहीं करते। बात समझ आ रही है? कभी हम ऐसे नहीं कहते यार प्रोटीन खाई, कौन से कलर की खाई है? इट डज नॉट मैटर किस कलर की है, बस खाइए, प्रोटीन है, वट एवर, चिकन है, फिश है, वट एवर। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन, वी आर वेरी फोकस्ड ऑन द कलर, फर्स्ट थिंग. And the second important thing, hemoglobin is just not like any protein molecule just lying on the cell just like this. No, it is a molecular motor kind of a thing. Molecular motor समझते हो? Just like आपने वो देखा होगा, एक रोटेटर डोर लगा होता है कभी मॉल्स की एंट्रेंस पे, वो रोटेटर डोर, या कभी ऐसे वो रोटेटर को जंगला सा लगा होता है, तो आप जाते हैं तो ऐसे वो एंटर होके आपको ऐसे घूम के आना पड़ता है। जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन एब्सोल्युटली वर्क्स लाइक दैट थिंग, दैट रोटेटर डोर। अब गौर से समझो बात, हीमोग्लोबिन में ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन आ रहा है, बहुत से बात सुनो, ऑक्सीजन आ रही है, हीमोग्लोबिन की कोई एक साइड एक्सपोज होगी ऑक्सीजन को, लाइक वो जो डोर का कोई एक साइड एक्सपोज होती है आपकी तरफ, चारों नहीं एक साथ हो सकती। व्हाट हैपेंस, इधर गौर से सुनो, ये हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कमिंग बाइंड, जैसे ही बाइंड करती है हीमोग्लोबिन रोटेट्स, एंड व्हाई इट इज रोटेटिंग? सो दैट अ न्यू vacant site is exposed to the new oxygen molecule. This rotation, this change in dimension of hemoglobin molecule so that more oxygen can be accommodated is called as positive cooperativity. अब इसका नाम समझ आ रहा, positive cooperation. How hemoglobin is doing this positive cooperation, helping every new oxygen molecule to bind properly with the hemoglobin. Every new oxygen molecule. अच्छा, ये कितनी दफा घूम सकता है? उसके बाद 4 ही जगह हैं, जब 4 पूरी हो जाएंगी पोस्ट, 4 प्लेसेस है ना, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अकोमोडेट कर सकता है, 3 दफा घूमेगा व्हाटएवर, लेकिन वैसे बात कर कि वो बाइंड करके 4 मॉलिक्यूल लगाएगा आगे, द नेक्स्ट वन कम्स, द नेक्स्ट वन, इट हैपेंस, कीप्स ऑन हैपनिंग। अब आपको बात समझिए हीमोग्लोबिन में डिफरेंस क्या है अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल से, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस पॉजिटिव। अगर जरा कंसीडर करो, व्हाट इफ देयर इज नो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी? Despite having abundant oxygen, our oxygen demand will never be fulfilled. There will always be some space there, vacant hemoglobin. Okay, यहां तक बात समझ आ गई? अब मैं अगली बात करता हूं, आसान वर्ड में समझाता हूं, बुक में नहीं ऐसा लिखा, आपको आसान वर्ड में समझाता हूं, जल्दी समझ आ जाएगा। What if a hemoglobin
contains only one oxygen. What if a hemoglobin contain 2, 3 और मैक्सिमम कितनी कर सकता है 4? इसको परसेंटेज में बोलो. 4 तो 100%, 75, 50, 25. What if no? This percentage value of binding of hemoglobin with oxygen is called as hemoglobin oxygen saturation. ये टर्म्स आएंगी आपके एमसीक्यू में, मैं आपको अभी बता रहा हूं. अगर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो देयर विल बी यू कांट डू एनीथिंग टू आंसर दिस एमसीक्यू. क्लू ही नहीं होगा आपको करना क्या. तो अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन का वर्ड लग गया है, व्हाट डज इट शोज अस? क्या क्या? अब परसेंटेज की बात हो रही है. तो इसका मतलब है, अब गौर से सुनो अगली बात, इसका मतलब है कि या तो परसेंटेज 0 होनी चाहिए, या 25 और 50 और 75 और 100. अगर मैं कहूं कि परसेंटेज 80% है, कोई लॉजिक बनती है इसकी? ये तो कोई लॉजिक नहीं. ऑक्सीजन को ऐसा तो नहीं कि एक मॉलिक्यूल आधा टूट के 25% टूट के लग गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आइदर इट विल बी कंप्लीटली बाउंड और नॉट बाउंड एट ऑल. अब मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने लगा हूं अगली बात बता के. द एवरेज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ह्यूमन ब्लड इज 98% इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. ये कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस एंगल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये वैल्यू नहीं बनती. आइदर इट शुड बी 100 और इट शुड बी 75. मैं आपको क्लियर भी करता हूं ये बात. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन का एक नॉन मेडिकल बंदे को भी पता लगा कोविड के दिनों में. रिमेंबर दैट पल्स ऑक्सीमीटर एवरीवन हैज इन हिज और हर होम एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड. करते क्या थे उसमें? लगाते थे. कोविड में एक बंदे को हॉस्पिटल कब लेके जाना है इसकी डिसीजन इसी बात पे हो रही थी. ठीक है, कोविड हो गया, सबसे पहली ट्रीटमेंट क्या थी? सबको याद होगा, घर पे रहो, क्वारंटाइन कर लो, घर पे रहो. लेकिन क्या करते रहना है घर पे रह के? अपनी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन बताते रहना. अगर किसी की नॉर्मल घर में रहते हुए कोविड के दौरान कोविड उसे पॉजिटिव है और उसकी सैचुरेशन 90% से नीचे जा रही है, उसका पल्स ऑक्सीमीटर शो कर रहा है, देन दैट इज अ टाइम ही और शी शुड कंसल्ट द डॉक्टर. इसमें अगले दो बातें आती थी, आइदर फिजिकल सिम्टम्स साथ आ रहे हैं कि नहीं, सांस फूलना शुरू हो गया कि नहीं. अगर हो गया तो इमीडिएटली, कुछ लोग ऐसे भी थे उनके 85% में भी दे वर नॉट फीलिंग एनी ब्रेथलेसनेस. सो स्टिल डॉक्टर सजेस्टेड देम पे अ वेरी क्लोज अटेंशन. हर 30 मिनट 15 मिनट्स के बाद मॉनिटर चार्ट बनाते जाएं, लिखते जाएं. लेकिन जैसे ही सिम्टम आना शुरू हो तो शिफ्ट हिम टू हॉस्पिटल. फिर हॉस्पिटल में कोविड की मोर्टेलिटी रेट इसकी बेस पे कैलकुलेट हुआ कि एक बंदा कोविड में रिकवर कितना अच्छा कर रहा है. मेडिसिन में अगेन ऑक्सीजन लगी हुई है, बेचारा बेहोश है डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन की वजह से, और पता लगे जी 2 लीटर या 5 लीटर पे ऑक्सीजन जा रही है, वेरी हाई अमाउंट, और उस पर भी सैचुरेशन 80% मेंटेन हो रही है, और उस पर 90. ऑक्सीजन मास्क हटाना शुरू करते थे आहिस्ता आहिस्ता जब पेशेंट रिकवर होता था. जैसे ही हटाते थे 90 से फिर 80, फिर होते थे नहीं अभी लगा दो, फिर हटाते थे, इस तरह ग्रेजुअली ऊपर लेकर आते. तो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूं. अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज 98%? व्हाई इट इज नॉट 100% व्हेन एवरी हीमोग्लोबिन is doing positive cooperativity, is taking some time to bind the new oxygen molecule, then why there is a 98%? पहले तो मैं आपको 98% की लॉजिक बताता हूं, फिर मैं 2% कम होने की लॉजिक बताता हूं. ये 98% बेटे इसलिए है, अब गौर से सुननी है बात. there is a concept here which is called physiological shunt. क्या कॉन्सेप्ट है? physiological shunt. Whenever you will hear the word of shunt in respiratory physiology, आपने हमेशा याद रखना है it is a bypass blood. बाईपास हो रहा है, और क्या चीज बाईपास हो रही है? ब्लड बाईपास. किस चीज से बाईपास हो रहा है? फ्रॉम ऑक्सीजनेशन. मैं समझाता हूं आपको क्यों हो रहा है, वो भी बताता हूं अभी. अब गौर से मेरी बात सुनो, लिसन टू मी. इधर देखो मेरी तरफ सारे. होना यह चाहिए था कि इन नॉर्मल पर्सन, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, हम किसी पहाड़ी हिली एरिया में नहीं है, तो होना क्या चाहिए था? ऑक्सीजन आती, सारे के सारे हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन बाइंड करती, और वैल्यू कितनी होती? 100%. लेकिन अब हो क्या रहा है कि 2% ऑफ द ब्लड, 2% ऑफ द सैचुरेशन,
ये किस में जा रहा है? शंट के अंदर। अगली बात है क्यों, व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज बेटे एक जो रेस्टिंग बंदा होता है ना, देयर इज अ टेंडेंसी कि जो उसकी एपेक्स की कुछ एल्वुलाई होते हैं ना, एपेक्स के कुछ एल्वुलाई वो प्रॉपरली ओपन नहीं होते। हमारे कुछ एल्वुलाई हमेशा कोलैप्स पड़े रहते हैं। आपको पता है वो ओपन कब होते हैं? जब हम जोर लगाते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, व्हाट इज हैपनिंग टू योर रेस्पिरेशन? इट इज गोइंग स्काई हाई। At that time, all your alveoli are now participating. But at this time, especially you people are sitting more comfortable than me right now. What is happening right now? The alveoli at the region of apex, very highly apex, upper part भी बिल्कुल apex का ले लो, they might be, जो तो जब वो खुले ही नहीं कभी, तो उनके पास जो ब्लड कैपिलरी जा रही हैं ब्लड लेके, वो क्या रहती हैं? लेफ्ट साइड, उसमें ब्लड बाईपास होता रहता है। लेकिन वो सिर्फ कितना होता है? अब अगली बात, वो सिर्फ कितना है? Only 2%. Rest of the thing are having a proper oxygen there. इसका मतलब है एक्सरसाइज में सैचुरेशन कितनी जा सकती है? 100%. कितनी जा सकती है एक्सरसाइज में? जब सारे एल्वुलाई खुल जाएंगे तो शंट ही खत्म हो जाएगा। देयर इज नो फिजियोलॉजिकल शंट है। तो अब गौर से समझो, इसके नाम फिजियोलॉजिकल क्यों लगा है साथ? क्योंकि ये नॉर्मल रेस्टिंग बंदे में प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल है, ये कोई पैथोलॉजी के साथ एसोसिएटेड नहीं, हम सब में इस वक्त भी हो रहा है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 98% कैसे निकली है? मेरी तरफ देखो इधर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। बेटे एपेक्स पे कई हीमोग्लोबिन ऐसे होंगे वो इसी पे रह जाएंगे, ब्लड गया आए कुछ नहीं, ऐसे ही निकल गए। कुछ 50 पे होंगे पहले से रैंडम, कुछ 75 पे होंगे, हो सकता है कुछ 0 पे भी हो। जब इनकी एवरेज ली गई, नीचे वाले 100% हो रहे थे, ऊपर वाले 25%, जब इनकी एवरेज ली गई तो वो कितनी निकली? 98. This is how it comes out to be 98%. It is the average of hemoglobin saturation of all the hemoglobin molecule in a normal human being. और उसमें हो क्या रहा है? 2% ब्लड स्केप कर रहा है, रिमेनिंग जो है वो पूरा सैचुरेट हो रहा है। लेकिन सैचुरेशन को हमने इस तरह से डिफाइन किया। आपको पता है किसी नॉर्मल बंदे के अंदर अगर पल्स ऑक्सीमीटर 100% शो करे तो पल्स ऑक्सीमीटर खराब है। गेटिंग इट और नॉट? कि आपने लगाया यहां पे खुश हो गया 100, 97, 100, पल्स ऑक्सीमीटर खराब। वो 98 से ऊपर नहीं जाना चाहिए अंटिल अनलेस यू आर एक्सरसाइजिंग, व्हाटएवर। नॉर्मल में नहीं ऐसा होना चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई? ओके।